اس آیت کو آپ کے لیے ایک بار پھر پڑھتا ہوں، اسے غور سے سنیں۔ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں۔ میرے عزیزو، اس خدا کے کلام پر پڑھے جانے سنے جانے پر اپنی برکت بخشے، آمین۔ ہم اپنی راہیں ڈھونڈیں۔ ہم نے اپنی راہوں کو ڈھونڈنا ہے کہ ہماری راہیں کیسی ہیں، ان کو پہچاننا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ عزیزو، پچھلے دنوں میں نے بہت سخت بات کی۔ میں اور میری بیوی اور میرے بچے، یہ میری جماعت ہے، یہ خدا کی جماعت ہے۔ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ میرے بیٹے اور میری بیٹیاں نہ ہوتے تو آج چرچ کے اندر نہ آتے، عبادت میں نہ آتے۔ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس لیے میرے ہمراہ خداوند کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ میرے عزیزو، آج تھوڑا سا ادھر سن 2022 ہے، آپ کو مبارک ہو۔ یہ جو سال ہماری زندگی میں آیا ہے، یہ غور خوض کرنے کے لیے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے، پھر اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یہ تین باتیں ہیں، غور کرنا ہے، پھر جو غور کے ساتھ فکر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، دوسرا لفظ ہے توبہ کرنی ہے، تیسرا لفظ ہے اصلاح کرنی ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے غور اور فکر کرنی ہے گزرے ہوئے سال پر، ماضی پر غور و فکر کرنی ہے۔ حال میں اب جو زمانہ جا رہا ہے ہمارا، یہ حال ہے، حال میں توبہ کرنی ہے اور مستقبل کے لیے اصلاح کرنی ہے۔ ہلیلویا، مستقبل کے لیے اصلاح کرنی ہے اور حال کے لیے توبہ کرنی ہے اور ماضی کے لیے غور و فکر کرنی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ہر وقت اس بات پر خیال رکھنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں جو سال دیا ہے، اس میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور 52 ہفتے ہوتے ہیں، 52 اتوار ہوتے ہیں اور 365 دن ہوتے ہیں۔ اور ان دنوں میں اگر ہم 2021 سال کی میں دیکھیں تو اس میں 12 مہینے اور 52 اتوار، ایک گڈ فرائیڈے اور ایک جو ہے وہ 24 کی عبادت، ایک 25 کی عبادت، یہ
جو دسمبر ہوتا ہے آخری وقت ہوتا ہے سورج کے دن کے آنے کی، نئے سال آنے کی، جو ہم عبادت نہیں کرتے وہ عبادت ہم شامل کر کے اگر دیکھیں تو پھر ہمیں 52 وہ چاہیے 56 عبادتیں ہم نے سال بھر میں کی ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے پچھلے سال غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں کون کون سے ایسے کام ہوئے ہیں، کون کون سی ایسی برکات خدا نے ہمیں دی ہیں جس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، خدا نے ہمیں 365 دن کے لیے زندگی بخشی ہے۔ آج ہم نئے سال میں زندہ ہیں، اور ہم اگر دیکھیں پچھلے سال کتنی بار ہم بیمار ہوئے اور کتنی بار خدا نے ہمیں شفا بخشی، کتنی بار ہم نے سفر کیا اور کتنی بار ہم محفوظ رہے، اور کتنی ہم نے عبادات کی اور کتنی ہم نے برکت پائی۔ میرے عزیزو، یہ ہم نے ان 3 وقتوں میں، ماضی میں، حال میں اور مستقبل میں ان باتوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر ہم آج توبہ نہیں کریں گے، کل کو ہماری زندگی میں اصلاح نہیں ہوگی، ہماری بہتری نہیں ہوگی، ہم محفوظ نہیں رہیں گے۔ میرے عزیزو، خدا نے، میں آج بھی ادھر پیغام دے رہا تھا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اور جو شخص عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ میرے عزیزو، ہم دکھ سے بھرے ہیں لیکن تھوڑے دنوں کے ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے دکھ ہے۔ اگر ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی راہوں کو پہچانیں، اپنے کردار کو، اپنے جو ان کو ڈھونڈیں، تو ہم دیکھیں کہ کیا خدا نے ہماری کتنی بار ہم پر رحمت کی، ہم پر کتنی مہربانی کی، سال بعد کتنی دفعہ ہمیں مہربانی سے اس نے چھڑایا ہے، ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ میرے عزیزو، یہ سال ہمیں غور کرنے کے لیے ایک اور خدا نے بخش دیا ہے۔ میرے عزیزو، لہمہ بلہمہ وقت اور ابدیت ہمیں پکارتی ہے کہ اپنی مستقبل کی اصلاح کر، ابدیت کی اصلاح کر۔ وقت اور ابدیت خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی ہے، میرے بیٹے، آنے والے وقت کی اصلاح کر، آنے والے وقت کو پہچان، آنے والے وقت کی راہ کو دیکھ اور میری طرف پھر، اور پھر برکتوں پر برکتیں پائے گا۔ میرے عزیزو، جب خدا کا بندہ موسیٰ مر گیا تو خدا نے ہمیشہ اپنے ساتھ جو نظام چل رہا ہوتا اس کے ساتھ، نبی کے ساتھ ایک اسسٹنٹ نبی بھی ضرور رکھا ہوتا ہے۔ جب موسیٰ مر گیا تو خدا نے نون کے بیٹے یشوع کو کہا کہ میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے تو اٹھ، دلیر ہو، حوصلہ رکھ اور فقط مضبوط ہو، اور جو ملک میں نے اسرائیل کے باپ دادا کو دینے کے لیے کہا تھا اس ملک کو تو لے کے چل۔ پھر خدا نے اسے کہا میں تجھے کہتا ہوں فقط دلیر ہو اور مضبوط ہو، اور یہ
जो शरीयत की किताब है ये तेरे मुंह से ना हटे। मैं जिस तरह मूसा के साथ था उसी तरह तेरे साथ भी हूंगा। मैं जिस तरह मूसा के साथ था इसी तरह मैं तेरे भी साथ हूंगा, और मैं तुझसे दस्तबरदार ना हूंगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ हूंगा। मेरे अजीजो, फिर खुदावंद ने नून के बेटे यीशु को कहा कि तू जहां जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ हूंगा। मेरे अजीजो, फिर खुदा ने उसे कहा कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, और जो कुछ मेरे बंदा मूसा ने तुझे हुक्म दिया है वो एहतियात करके उस पर अमल करना, और ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और हर वक्त इस किताब का, शरीयत की किताब का ध्यान तुझ पर रहे। तेरा ध्यान इस किताब पर रहे, और फिर तुझे इकबालमंदी मिलेगी, और इकबालमंदी की राह नसीब होगी। मेरे अजीजों, ये खुदा का फरमान है, हुक्म है नून के बेटे यीशु के लिए कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, और ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और अगर तू इस किताब पर अमल नहीं करेगा तो जो इकबालमंदी की राह है वो तुझे नसीब नहीं होगी। अगर तू चाहता है कि ये राह जो इकबालमंदी की राह है, जो मुस्तकबिल की राह है, जो अब्दियत की राह है, जो मुल्क मैं तुझे देने वाला हूं उसमें तू जाए, तो फिर क्या करना है? क्या करना है? फिर कोई बताएगा? इसका मतलब आप मेरे साथ नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात इस पर ध्यान रहे, और इकबालमंदी की राह उस वक्त नसीब होगी जब तू इस पर अमल करेगा। हालेलुया। मैं ये पूछ रहा था आपसे, तो आप सब खामोश थे। मेरे अजीजों, साल गुजर गया है, एक आज पहला दिन है 2022 का, कल की कोई खबर नहीं है। सामान जो है हमारे पास 100 वर्ष का है, कल की कोई खबर नहीं है। तो इस किताब की कलाम मुकद्दस में यूहन्ना आरफ कहता है, इसका पढ़ने वाला, इसका सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला मुबारक है। हालेलुया। अगर हमें पढ़ना नहीं आता तो सुन तो सकते हैं, सुनकर अमल करना है। अमल जो बंदा सुनता है, दिल में लेके जाता है, वो ईमान लाता है। सुना हुआ कलाम जो है वो ईमान लाता है और फल लाता है। फिर खुदावंद हमें इकबालमंदी की राह नसीब कर देता है। जब हम अमल करेंगे, अमल और ईमान ये दोनों जो हैं ये एक बात पर मुत्फिक होते हैं। अमल भी लाना है, ईमान भी रखना है। तो जब हम दोनों हमारे अंदर होंगे, अमल भी होगा, ईमान भी होगा, सुना हुआ कलाम भी होगा, तो फिर हमें तो राह जो है
हमारी इकबालमंदी में कोई रुकावट नहीं आएगी। फिर हम जिस चीज को चाहेंगे, क्योंकि खुदा हमारा साथ है, उसने वादा किया है जिस तरह मैं मूसा के साथ था तुम्हारे साथ भी होगा। अगर अकेले की बात होती तो नोहा जो यर्मिया जो रो रो कर जिसने अपनी आंखें खराब कर ली, सर दिमाग खराब कर लिया, रोता रहा और रो रो के दुआएं करता है और कहता है कि हम अपनी राहों को ढूंढें। हमने अपनी राह को जांचना है, पहचानना है कि हमारी राह कौन सी दुरुस्त है, कौन सी राह हमारी टेढ़ी है जो खुदा को पसंद नहीं है। फिर हमें जो हमारी सीधी राह होगी, जो हमारी राह खुदावन के हुक्म के मुताबिक होगी, वो आइन के मुताबिक होगी, तो फिर हमें इकबालमंदी में हमारी रुकावट नहीं है। फिर हम जिस चीज को भी हाथ लगाएंगे, हमारी माएँ बहनें बेटियां खाना पकाएंगी, थोड़ा पकाएंगी और हम थोड़े में बरकत पाकर सैर और सहराब हो जाएंगे। फिर हमारा खाना पीना ज़ाया नहीं जाएगा। फिर हम सारा दिन कामकाज पर नहीं रहेंगे, सुबह की गए शाम तक ड्यूटी पर नहीं रहेंगे, बल्कि जो मुकर्रर वक्त है उसी पे कनायत करके हम अपने बच्चों के लिए इकबालमंद बन जाएंगे, अपने बच्चों के लिए बाइस बरकत बन जाएंगे, अपने खानदान के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बाइस बरकत बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम बाइस बरकत बन जाएं, इकबालमंदी की राह नसीब हो, तो फिर कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें गौर ख़ौज़ करने की ज़रूरत है, माजी पर ख्याल करने की ज़रूरत है, हाज़रा वक्त में हाल में तौबा करने की ज़रूरत है और आने वाले वक्त की तैयारी करने की ज़रूरत है, इस्लाह करने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु आने वाला है। उसने कहा है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, तू मेरे वास्ते खोल दे। खोलने में कितनी देर लगती है? अगर हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करने वाले हैं तो फिर तो जैसे ही उसकी आवाज़ हमारे कानों में आएगी, उसकी आवाज़ खटखटाने की आवाज़ आएगी तो हम फौरन खोल देंगे। अगर हम जो फिर वो कहेगा मैं तुम्हारे साथ अंदर आता हूँ, खाना खाता हूँ, अगर हमारी कोई भी उसके साथ वाकफियत नहीं है तो फिर हम उज़र बहाने बनाएंगे और फिर हम कहेंगे मैं तो अभी अपने बिस्तर पर लेटी हूँ, मैं क्यों उठूं तेरे लिए दरवाजा क्यों खोलूं, मैं अपने पाँव क्यों तेरे लिए खराब करूं। मेरे जीजो, दरवाजा खटखटाने वाला खटखटा रहा है और महबूबा कहती है मैं तो अभी बिस्तर पर लेटी हूँ, मैं अभी लेटी हूँ, मैं अपनी नींद क्यों खराब करूं, क्यों अपनी नींद खराब करूं। यीशु आके खटखटा रहा है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरे लिए दरवाजा खोल। आज वो हमें बेटी और बेटा कह के पुकारता है, कल हम उसकी बीवी बनकर उसके पास जाना। हालेलुया। जब हम बीवी बनकर उसके पास जाना है तो कोई शोहर ये सोचेगा कि मेरी बीवी नकमी हो, मेरी बीवी मुझे खाना पका कर ना दे, मेरी बीवी मेरे लिए उठकर रात को पानी मुझे ना दे, ये कोई भी नहीं सोचेगा। जब भी हम अपनी बीवी को आवाज देते हैं और कहते हैं कि बेगम मुझे प्यास लगी हुई पानी दे, या नाम लेकर कहते हैं या कह देते हैं फलां की माँ मुझे पानी दे, तो वो पानी देती है और रात को अपनी नींद खराब करके अपने साथ को खुश करती है, वो बरकत पाती है। और जो रात को सोती है साहब जो मर्जी करे और वो खराटे मारे और वो बरकत नहीं पाती है, वो बरकत पाएगी जो जागती है और अपने साहब का इंतजार करती है और अपने साहब के लिए अपनी जान निछावर करके
इकबाल मंदी की रात इख्तियार करती है, वो आसमान पर है, वो खुदावंद यीशु के पास है। क्योंकि ये हमने इस्लाह करनी है, अपनी फिक्र करनी है, गौर करना है कि क्या मैं जिस मकसद के लिए मुझे यीशु ने आज का दिन दिया है, आज नया साल दिया है, क्या मैं इस साल में वो काम करूं जो जिससे खुदावंद नाराज हो जाए? हरगिज़ नहीं। हम नहीं चाहते कि खुदावंद हमारा दरवाजा खटखटाए और कहे कि देख मेरा सर शबनम से तर है, देख मैं दूर से कूदता फांदता हुआ आया हूँ, मेरा सर शबनम से तर है, मेरे लिए दरवाजा खोल। और अंदर से आवाज आए कि मैं तो अभी अपने बिस्तर पर लेटी हूँ। हम नकम्मे ना बने, बल्कि काम के लोग बन जाए, क्योंकि उसने एक और साल हमारी जिंदगी में बख्श दिया है, एक और साल बख्श दिया है। माली ये अभी एक कोरस गा रहे थे, अरे पाकरू उन्होंने ले जा किथे, किधे को ले जा? यीशु को। तो यीशु को पाकरू ने लेके जाना है, ना कि मैं लेके जाना, ना किसी और ने लेके जाना। इस कलाम ने यीशु को लेके, ये कलाम हमारी राह के लिए रोशनी, और हम इस पर चलेंगे इकबाल मंदी सरफराजी पाएंगे। तो फिर पाकरू जो आज हमारी शिफायत कर रहा है, बाप के सामने कह रहा है, बाप इस बेटे को, इस बेटी को एक और दिन बख्श दे, एक और दिन बख्श दे, साल नहीं एक और दिन बख्श दे। मेरे अज़ीज़ों, पाकरू मेरे लिए, आपके लिए हाय भरता है। यर्मिया इसराइल के लिए नोहा कर रहा है, इसराइल के लिए रो रहा है, अपनी राहों को दुरुस्त करो, ढूंढो, पहचानो और खुदा की तरफ फिर जाओ, फिरो। और पाकरू हमारे लिए खुदावंद यीशु के सामने शिफायत करता है, क्या है खुदावंद इनको एक और दिन बख्श दे। हालेलुया। इस कलाम पर आप लोग पढ़े जाने और सुने जाने।